और फिर मैं बच्चों को एंटर करूंगा। राइट जी, 2025 का पेपर, मार्च का, expect a very similar difficulty paper, not the same questions but similar difficulty. So let us start with, ये मैं भी देख ही रहा था, मुझे बड़ा आसान लगा था। चले, let's see जी, let's quickly read through the paragraph and do section A. मुझे section B बहुत आसान लगा था, to be honest. Almost every in the United States, एक second जी, right जी. So almost every kitchen in the United States, US will pay the price for the intense heat and drought in Europe in summer of 2023. Olive harvests in key countries were so poor that some analysts were concerned that there would be a shortage of olives to produce enough olive oil to meet the demand around the world. The dramatic reduction in output of this typical household cooking oil has resulted in the consumer price of olive oil rising between 30% and 50% across the US. At the same time, the US dollar has fallen in value against Europe's main currency, the euro, further adding to price increase of olive oil. तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है कि गर्मी और बारिश ना होने की वजह से यूरोप में ऑलिव की फसल बहुत कम हुई है, आउटपुट गिरी है, सप्लाई कम हुई है। उसके रिजल्ट में ऑलिव ऑयल 30 to 50% यूएस में महंगा हो गया और ये हर किचन में यूज होता है। सो उन्हें इसकी प्राइस हाई पे करनी पड़ेगी। दूसरी वजह हायर प्राइस ऑफ ऑलिव की थी कि यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ यूरो के अगेंस्ट, तो उन्हें ऑलिव और महंगा पड़ा उनकी इंपोर्ट। ये एक फिगर है जिसको हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज एनी अदर स्टूडेंट इन द वेटिंग। नो। So let's move on. In Spain, olive production was forecast to be down by about 50% in 2023, which would make it the lowest since 2008. The wide scale drought conditions across southern Europe and other Mediterranean countries significantly impacted on the global supply of olives. Um, since about 80% of global output comes from these regions. अब स्पेन में भी ऑलिव की प्रोडक्शन जो है वो 50% डाउन होने का चांस है 2023 में। तो 2008 के बाद इतनी कम प्रोडक्शन हुई है, तो बेसिकली उसके रिजल्ट में भी ग्लोबल आउटपुट 80% ऑलिव की इन रीजन्स की तरफ से कम होने वाली है। 80% ये प्रोवाइड करते हैं तो ग्लोबल आउटपुट कम होने वाली है। अगेन उन्हें एक पैराग्राफ सॉरी एक डायग्राम दिया है, एक टेबल दिया है, फिगर दिया है यूरोपियन यूनियन प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल और दिखाया है कि किस तरह कम हुई है। Restaurants and commercial kitchens are desperately trying to find a solution to the olive oil shortage. But alternatives are scarce too. Sunflower oil is a top choice for an olive oil replacement, but the conflict in Ukraine, which is biggest producer of sunflower oil, has made this substitute increasingly difficult to access. एक और मसला जी, उसका सब्स्टिट्यूट सनफ्लावर ऑयल वो भी आसानी से नहीं मिल रहा क्योंकि यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चला था। Previously, the US would look to other countries for olive oil, but supply chains have been severely disrupted. Olive oil does not store very well as its quality deteriorates over time, so increasing stocks does not solve the problem. मतलब ज़्यादा स्टॉक रखने भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये वक्त के साथ ख़राब हो जाता है। It is perhaps unsurprising that analysts are recommending investment into new methods of storage that will preserve the quality of the olive oil. This would allow stocks to increase after good harvest to help stabilize prices during future periods of poor harvest. बच्चों ज़रा एक मिनट लो और मुझे बताओ इसमें कहीं पे आपको कुछ मैक्रो नजर आया है या मेजॉरिटी माइक्रो आया है, और अगर जो भी नजर आया है कौन से चैप्टर से नजर आया है? जस्ट लुक एट इट एंड गिव मी योर आइडिया। जी मेरे बच्चों, आपकी मैक्रो बेस्ड केस स्टडी लग रही है माइक्रो? Where did you find a mix? I really don't see any mix.
हम्म। अच्छा। अच्छा, चले चले आपकी बात। Exchange rate was the only international trade का concept, not macro. Globalization exchange rate is not macro, it's a separate international economics. तो अब्दुल्ला, उस लिहाज से आपने ये बात सही भी की और गलत भी की। मेजॉरिटी आपको क्या लग रहा है कि ये माइक्रो से है या मैक्रो से? बी एबल टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले चैप्टर्स माइंड में आ जाते हैं कि कौन से आने वाले हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जी मेरे बच्चों, कम ऑन, शार्प ब्रेन्स, टेल मी। Who is that? Who is that? Who is that? Iman? Yes, I wish somebody else was saying it as well. Iman is 100% right. Demand and supply. Substitutes की बात कर रहा है, फिर स्टॉक्स की बात कर रहा है, पीईएस की या बफर स्टॉक स्कीम्स की बात कर रहा है. So there is hardly any micro concepts involved, any macro concept involved. Actually, none of the macro. Only exchange rate and global level prediction in supply can be linked to international trade, not macro. जी मेरे बच्चों, अब पूछिए. सो ऑलवेज बी वेरी क्लियर विद योर सिलेबस. अब मेरे बच्चों, एक स्टार्ट करते हैं कॉमन तरीन क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे गलत कर बैठते हैं. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज यूजिंग फिगर 1.1. अब कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर मुझे नहीं पता होता कि मैंने कितना डेटा से लेना है, कितना अपनी तरफ से बताना है, तो मुझे सेक्शन एज में प्रॉब्लम होता है. दो तीन बच्चों ने ये बात सेम कही है. तो मेरे बच्चों, आई टेल यू हमेशा, आस्क योरसेल्फ थ्री क्वेश्चंस. इज द क्वेश्चन इज टोटली फ्रॉम द डेटा, पार्शली फ्रॉम द डेटा, या जनरल क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन वो बच्चे मुझे बताएं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था. देयर वाज जैनब, देयर वाज अब्दुल्ला, देयर वाज सम अदर्स. आप मुझे बताएं कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑलिव ऑयल बिटवीन मई 22 एंड जनवरी 2023. फिगर 1.1 में से लेना है. ये टोटली फ्रॉम द डेटा है, पार्शली या जनरल? जैनब, अब्दुल्ला, कम ऑन सो वी कैन हेल्प यू. सॉरी? टोटली फ्रॉम द डेटा. दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी सर मार ले अपना, जब तक फिगर 1.1 नहीं देखेगा परसेंटेज चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकेगा. सो पहली चीज आपने ये करना है. उसके बाद मेरे बच्चों, हमेशा बोलता हूं, जब भी क्वेश्चन देखो, अगर तो इस तरह का है तो टोटली डेटा से आप जाके सॉल्व करें. लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है जी आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा एंड एक्सप्लेन, तो वो पार्शली फ्रॉम द डेटा है. मेन पॉइंट्स लेने हैं डेटा से और उसके मुताबिक एक्सप्लेन करना है या डायग्राम बनाना है, वो पार्शली हो गया. कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कहते हैं डेटा में देखो कि भाई ये यूरोपियन यूनियन के लिए अच्छा है या बुरा है, समथिंग लाइक दैट. तो उसमें डेटा भी होते हैं और आपकी इकोनॉमिक्स. हमेशा पहले सोचो, मतलब वो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यूज की है. मॉनेटरी पॉलिसी यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह पे सेम है. सो डू नॉट फ्रेट. पहले मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरह बताओ, फिर डेटा में से जो मिलता है उसको साथ साथ अप्लाई करो. अब आई होप यू गाइस हैव गॉट सम क्लियर पिक्चर, या मजीद इस पे बात करूं? ऑलराइट, तो लेट्स सी जी. अब मेरे बच्चों, अच्छे बच्चों, जल्दी जवाब नहीं देना. आई वॉन्ट हाफ अ मिनट. एवरीबडी शुड बी एबल टू. मई 22 और जनवरी 23, कितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में? पहले पकड़े न्यू प्राइस जो कि जनवरी 23 की है, राइट? फिर पकड़े ओल्ड प्राइस जो कि मई 22 की है. न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस इनटू 100 जब करोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा. मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप सब भी करें. हाफ अ मिनट ऑफ साइलेंस. नोबडी इज गोना गिव द आंसर, प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज आई वांट टू फिक्स दिस कॉन्सेप्ट वंस एंड फॉर ऑल. ये बहुत कॉमनली आ रहा है और मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, आप लोग अभी जवाब नहीं दोगे. जी, I've done the calculations.
एक मिनट, नहीं बताना, नहीं बताना। जी कुछ पूछना है तो पूछ लें। डोंट टेल मी द आंसर। यस, ऊंचा बोले। क्वेश्चन बहुत सिंपल है मेरा बेटा, ये देखो। Using figure 1.1, calculate the percentage change in the world price of olive oil between May 2022 and January 2023। मई में थी, जाके देखो, उन्होंने प्राइस लिखी हुई है ऊपर यूएस डॉलर में। 23 जनवरी में भी लिखी हुई है। तो न्यू प्राइस, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड प्राइस, ओल्ड वैल्यू, जो आंसर आए डिवाइड करो इसको ओल्ड प्राइस से इनटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं एक दो बच्चों से पूछ रहा हूं, प्लीज आंसर, ताकि आपके ये दो मार्क्स विच कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड पासिंग, सी एंड बी एंड ए एंड अ वर्ल्ड डिस्टिंक्शन। तो प्लीज मुझे, फरीद ससोली, पहले आप बताओ क्या आंसर है आपका। नहीं माइक चल रहा तो प्लीज टाइप करो और टेल मी दैट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, ताकि मैं आपको समझाऊं। ये फरीद ने बोला है। बच्चों मैंने रिक्वेस्ट की थी, कोई नहीं बोले। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड नोबडी स्पीक्स। यस, योर आंसर। हाँ, आपका भी सेम है फरीद। शाबाश फरीद, गुड बॉय। 5893 माइनस 4098, जो आंसर आया, ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आया डिवाइडेड बाय 4098 इंटू 100, बेसिकली वही न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इंटू 100, P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू 100, जैसे हम पीडी में करते हैं। राइट, तो बहुत आसान है, ये दो मार्क्स प्लीज लूज ना कीजिएगा। मिड्स में, मॉक्स में आप लोगों ने लूज किए थे। Anyone not clear on how to calculate percentage change? There is no embarrassment in asking, मेरे बच्चों। Okay, some restaurants, पार्ट बी में करवा रहा हूं, some restaurants in commercial kitchens, यानी रेस्टोरेंट्स के भी और कमर्शियल किचन जो टेक अवे वगैरह करते हैं या केटरिंग करते हैं, आर यूजिंग सनफ्लावर ऑयल एज एन ऑल्टरनेटिव टू ऑलिव ऑयल। एक्सप्लेन हाउ। सॉरी जी, फौजी कम ऑन टाइम मेरा बेटा, शाबाश जी। Some restaurants and commercial kitchens are using sunflower oil as an alternative to olive oil. Explain how economists could measure the impact of rising olive oil prices on the demand for sunflower oil. मेरे बच्चों तसल्ली से सोचो, एक गुड की प्राइस का दूसरी पे जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिस्ट किस चीज के जरिए मेजर करते हैं? थिंक। थैंक यू, एक्सीडी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एहतियातन हम यहां पे डेफिनेशन और फॉर्मूला दे देंगे। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ one good, like olive oil, oh sorry, sunflower oil, and price of the other, olive oil। फॉर्मूला भी दे देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सनफ्लावर ऑयल, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑलिव ऑयल। ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएगी। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, जो राइजिंग ऑलिव ऑयल प्राइसेस हैं, उसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, क्या रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट्स में? किसने नेगेटिव बोला, किसने नेगेटिव बोला? पॉजिटिव। जब ऑलिव ऑयल महंगा होगा, रेस्टोरेंट्स स्विच कर जाएंगे टुवर्ड्स सनफ्लावर ऑयल विच इज द चीपर सब्स्टिट्यूट। सो एक की प्राइस बढ़ी, दूसरे की डिमांड बढ़ी, डिमांड के राइट पे शिफ्ट हुआ। क्लियर मेरे बच्चों, ये दो मार्क्स भी बिल्कुल हलवा थे। यस, समझ आ गया बेटे, नॉट नेगेटिव। SPCN याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव रिलेशन। असल में बच्चे डिमांड टू डिमांड सोचते हैं, एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पे हमने इफेक्ट देखना है। राइट मेरे बच्चों। सो उप्स, हादी आपने हैंड रेज किया है, मे बी बाय मिस्टेक। सो अच्छे बच्चे, 4 आउट ऑफ 4।
Some kids might mess it up 2 out of 4, but still you are all on A grade क्योंकि हाफ पे 30 आते हैं. 30 is a very handsome A star. तो कितना इजी है. अब मेरे बच्चे जी, यहाँ या बोले 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 मेरे बेटे. हाँ, थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ा, वही है 24. यही तो मजे की बात है, पेपर आसान है, थ्रेशोल्ड नीचे है, which means kids must have done some real stupidities in India. ये इंडिया में रिलीज हुआ था ना. इंडिया के लिए कैम्ब्रिज सिस्टम इज रिलेटिवली न्यू कंपेयर टू पाकिस्तान. आप लोग कैम्ब्रिज पेपर्स बहुत बेहतर करते हो कंपेयर टू इंडिया. तो लेट्स मूव ऑन. सी पार्ट जी. With reference to figure 1.1 and the help of a demand supply diagram, consider the impossible impact of increased olive oil prices in 2023 on consumer surplus. जी मेरा बेटा. जी मेरा बेटा. जी मेरा बेटा. जी पूछें. All right, you're slowing my class. हम्म. क्या चीज. बेटे कितनी बार बताऊं. यूनिट 3, 4, 5 मैंने आपके एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप्स में डाला है. हर क्लास में बताया है. यूनिट 3, 4, 5 फॉर मैक्रो. यूनिट 2 to 5 फॉर मैक्रो अकॉर्डिंग टू माई नोट्स. ठीक है. ये मैंने आपको बहुत दफा बताया. अब माइक बंद कर दें प्लीज. लेट्स जस्ट डू. बेटे माइक बंद करें, किसका ऑन है. Okay, so let's go to a simple document and let's see how to do this question. ये मैं इतनी दफा करा चुका हूं कि मेरे अच्छे बच्चों को तो ये अब रट चुके होंगे. But still, let's not overestimate anyone. Let's understand. वो कहता है फिगर 1.1 1.2 पे जाएं और फिर डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाएं. Consider the possible impact of increased olive oil price in 2023 on consumer surplus. अब जरा एक बार डायग्राम देख लो. क्या हुआ है जी 2023 में ऑलिव की सप्लाई. एनीवन. पूरा डेटा इसके बारे में. कम हुई है. लिटरली हाफ के बराबर गिर गई है. ठीक है, फ्रॉम 22. तो सप्लाई कर्व हम किधर शिफ्ट करेंगे. टूवर्ड्स द लेफ्ट. और उससे यस उससे कंज्यूमर सरप्लस पे जो कमी आएगी वो हम दिखाएंगे. तो इस क्वेश्चन को हम बहुत दफा 8 मार्क के लिए भी सॉल्व कर चुके हैं. तो दिस शुड बी अ वेरी इजी पार्ट. इट्स जस्ट 4 मार्क्स. उसी का हाफ बन जाएगा. सो जी मैं अब आपका व्हाट इज दैट. हाँ, मैं लेता हूं ड्रॉ करने के लिए. अरे चार्ज नहीं है. चलें, लेट मी गेट द चार्जर. बेटे. इन द मीन टाइम आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस पे बाद में आ जाते हैं और फिर हम इसको बनाएंगे. ये भी 4 out of 4 था. जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगी. चार्जर. ऑल राइट जी. अब वो कह रहा है विद रेफरेंस टू फिगर 1.2. अच्छा सॉरी, हो गया. सॉरी, ये तो हमारे पास नहीं है अभी वो बनाने के लिए. एड्रेस द लाइकली. अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताएं, इसमें आप कुछ डिफाइन करेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड. कंज्यूमर सरप्लस. नो नीड टू डिफाइन डिमांड एंड सप्लाई बिकॉज उसने डायग्राम बोला है. आप कर दो बेटे, कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन कर दो. Yes, difference between the price consumer is willing to pay and what he actually pays. अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू. उसके बाद मेरा बेटा आप जाओगे, सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे, इक्विलिब्रियम बनेगा और प्राइस हाई हो जाएगी. प्राइस हाई होने से मुझे बताएं कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा. रिड्यूस होगा. वो एरिया दिखा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि शॉर्टेज हुई थी, वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बढ़ी, सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ और कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ. कितना कम होगा. आखिरी बात जो हमेशा. इट विल डिपेंड ऑन पीईडी. जिंदाबाद. राइट. जितनी
जितनी इनइलास्टिक उतना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा गिरेगा, जितनी इलास्टिक उतना कंज्यूमर सरप्लस कम गिरेगा। यहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस की बात नहीं करनी। सो लेट्स खैर गो टू पार्ट डी। अब मैंने चार्जर लगा दिया, विद इन अ मिनट आई विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। सी पार्ट, assess the likely impact of increasing stocks of olive oil on the price and quantity of olive oil traded in the future। एक दो बार क्वेश्चन पढ़ें। ये बफर स्टॉक स्कीम्स का क्वेश्चन है जो हमने कल ही रिवाइज किया है। अगर प्रोड्यूसर्स या गवर्नमेंट ज्यादा स्टॉक रख लेती है ऑलिव ऑयल का, उन्होंने कहा था नया मेथड यूज कर रहे हैं ताकि क्वालिटी भी ना गिरे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे और क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल की ट्रेड पे इन फ्यूचर। अब देखो, यहां पे देखो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, तसल्ली से देखें, यहीं से ही आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जनरली आपने बफर स्टॉक के फायदे नुकसान देखने। ये तो नुकसान है, इस पे बाद में आते हैं। पहले बताएं, जब हम ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल ट्रेडेड क्या होगी। एक ने सही बोला, एक ने गलत बोला। ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो फ्यूचर में शॉर्टेजेस मीट कर सकेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ेगी। यस, प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी। उसने यहां बताया है कि जी, investment into new methods of storage, this would allow stocks to increase after good harvest to stabilize prices during future periods of poor harvest। shortages में हम इसको रिलीज कर सकेंगे। एज अ रिजल्ट ट्रेड ज्यादा होगी, प्राइसेस गिरेंगी, स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्टेजेस में गवर्नमेंट खरीद लेगी या प्राइवेट प्रोड्यूसर्स खरीद लेंगे, जबकि सरप्लसेस में वो इसको रिलीज कर देंगे। सॉरी सॉरी, शॉर्टेजेस में रिलीज कर देंगे और सरप्लसेस में खरीद लेंगे। अब जी, थोड़ा सा ओवरऑल बफर स्टॉक स्कीम के फायदे हम यहां पे करते हैं। आप कहें जी, स्टॉक्स अवेलेबल के क्या फायदे हैं? शाबाश, कुछ बच्चे बोलो। रिलीज कर सकती है, जिससे प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी। जब सरप्लस है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर उनको, जब शॉर्टेजेस है तो क्या करोगे आप? स्टॉक्स रिलीज करेंगे। और जब सरप्लसेस हैं तो बाय करेंगे आप। इस लिहाज से प्राइसेस वॉलेटाइल नहीं रहेंगी, फ्लक्चुएट नहीं करेंगी, प्राइसेस कम रहेंगी, जिससे कंज्यूमर को फायदा होगा। और अगर प्राइस ज्यादा हुई तो प्रोड्यूसर की इनकम स्टेबल हो जाएगी, तो फार्मर्स की इनकम स्टेबल हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब क्या नुकसान है बफर स्टॉक स्कीम के? स्टॉक रखना काफी कमाउंट कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, स्पेशल स्टोरेज मेथड चाहिए, खराब हो जाता है बहुत जल्दी तो ऑब्सोलेंस कॉस्ट है, मैनेजिंग की कॉस्ट है। कुछ समझ रहे हैं कितना आसान था? अगर आप सही सही उस पे पहुंच जाएं, टॉपिक पे। शाबाश, अब आप लोग बोलें, आई एम डन। चोरी भी हो सकता है, मौसम खराब होने से खराब हो सकता है, कोई हरिकेन टोर्नेडो आने से गड़बड़ हो सकती है। गवर्नमेंट को अक्सर पता नहीं लगता कब सरप्लस है, कब शॉर्टेज है। कभी गलत टाइम पे बाय कर देते हैं, कभी गलत टाइम पे रिलीज करते हैं। इसमें हमने बहुत डिटेल्स पढ़ी थी, एक बार रिवाइज कर लें बफर स्टॉक स्कीम्स। अब इवैल्यूएट करें जी, कितना स्टॉक रखना चाहिए और ओवरऑल ये फायदेमंद। Brilliant. Government या private sector should be able to identify the adequate, proper, reasonable level of stock so they don't overstock or understock. Only then this scheme will work. It will also depend on the budget available, quality of storage available, on how successful the scheme will be. समझ आ गया मेरे बच्चों, या एक बार फिर करा दूं? बफर स्टॉक में मुझे डर लगता है। हाँ, ओके, 2 पॉइंट्स आपने, सिर्फ 2 मार्क्स, 3 तक दे देगा वो। क्यों अच्छा है? खुद ही उसने डेटा में बता दिया।
अब नया मेथड आ गया जिससे क्वालिटी ऑफ ऑयल ऑलिव ऑयल भी खराब नहीं होगी। तो गुड हार्वेस्ट में आप खरीद के प्राइसेस स्टेबल करोगे, पुअर हार्वेस्ट में आप रिलीज करके स्टॉक प्राइसेस नॉर्मल करोगे, इनकम ऑफ फार्मर स्टेबल हो जाएगी, ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स को भी ये मुसलसल स्टेबल प्राइसेस पे मिलेगा, और गवर्नमेंट को भी ट्रेड ज्यादा होने से टैक्सेस मिलेंगे। नुकसान क्या होंगे? खराब हो सकता है, पोर स्टोरेज फैसिलिटीज हो सकती हैं, हरिकेन टोर्नेडोज आ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अक्सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती क्या राइट लेवल ऑफ स्टॉक है, कभी ज्यादा खरीद लेती है, कभी ज्यादा रिलीज कर देती है, तो उससे मार्केट डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जी बफर स्टॉक पे कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैनेजमेंट है, सो इट इज नॉट वेरी इजी टू मैनेज। राइट जी, evaluation, they will have to identify the right level of stock, the adequate level of olive oil that they need to keep, good storage facilities, and how much budget they have. Right, मेरे बच्चों? अब आई थिंक आई कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर सेक्शन सी। अब इसमें मुझे एक बच्चे की हेल्प चाहिए होगी, तो आप लोग मुझे बताएंगे। लेट्स से अहमद फ्रॉम सिटी स्कूल। अहमद मेरा बेटा, थोड़ा सा मुझे बताइए। Oh, अच्छा, now I realize what's the problem. It's not the charging, it's the device is not plugged. इसलिए अभी करते हैं जी, तो दोबारा बिला हो जाएगा, टाइम जाया किया हमने। राइट जी, तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ये डायग्राम। जी, सो अहमद, ये मैंने ड्रॉ किया, लेबल करवाओ। डिमांड सप्लाई डायग्राम का क्या लेबल होता है? प्राइस, क्वांटिटी। अब मैंने लगाया, ये कौन सा कर्व है? यस प्लीज, उल्टा ना कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे बच्चे उल्टा करते हैं। सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी। अब अहमद, सप्लाई पे क्या असर पड़ा था, किधर शिफ्ट होगी? लेफ्ट पे कम होगी, एरो लगा दें। इक्विलिब्रियम बना E1 पे, प्राइस बढ़ के आ गई P1 पे, क्वांटिटी कम होके आ गई Q1 पे। बस इसको एक्सेस से जोड़ दें। अब आप ए लिख दें यहां पे, सारा कुछ हो गया। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या था, बता दें। अगेन को और बच्चा बोल रहा है, आई वांटेड अहमद टू स्पीक। डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस से ऊपर, बिल्कुल। न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया अब? ए P1 E1। रिडक्शन कितनी हुई है, रिड्यूस्ड कितना हुआ है? शाबाश, P1 E1 E, बस अब ड्रॉ सही कर लीजिएगा। दिस शुड गिव यू 3 मार्क्स विदाउट अ डाउट। 1 मार्क कितना कम होगा विल डिपेंड ऑन पीडी। इन इलास्टिक है तो ज्यादा कम होगा कंज्यूमर सरप्लस, इलास्टिक है तो थोड़ा। सब बच्चों को ये क्वेश्चन अब समझ आ चुका है, हमने बहुत दफा किया है। जी जी, जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? हम्म। जाहिर बात है बेटे, पूरा एरिया तो तभी नजर आएगा ना। हम्म, वो भी कर सकते हैं, मैं भी आपको कर देता हूं। लेट्स सी इसको, 1 2 3 4 ये कर दें। हम्म, डिफरेंट वेज, ऑल एक्सेप्टेबल, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो मेरे बच्चों, अच्छे बच्चे इसमें 8 में से 8 लेंगे इंशाल्लाह, पहले 3 में। हाँ, बफर स्टॉक में लेट्स से 4 लेते हैं। 12, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी गुड थ्रेशोल्ड। सिर्फ 12 मार्क्स और रह गए बाकी के, 44 मार्क्स में से। जी मेरे बेटे, 46 मार्क्स में से। जी बेटे, क्या पूछना चाह रहा है को बच्चा? यस, क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस। नहीं, आई डिसएग्री विद यू हियर। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद यू हियर।
P2 में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। P4 अब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, आई एम श्योर सम ऑफ द किड्स एग्री विद मी कि उसके बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं। एफिशिएंसी की वही एक्सटर्नैलिटीज, मार्केट फेलियर्स, लेबर मार्केट की वही ट्रेड यूनियंस, मोनोप्सनीज, परफेक्ट लेबर मार्केट के अगेंस्ट क्या हो रहा है। बहुत ही एक्सपेक्टेड पॉलिसीज के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड से। और उसमें क्योंकि वो 20 मार्क का होता है, बच्चा बहुत अच्छा लिख लेता है, टाइम मैनेज कर लेता है। और यस, P4 में मार्किंग भी जेनरस है। P2 में मार्किंग भी टाइट है और इसमें वेरिएशन है। I've always found P2 a little bit tougher. समझ आ गया मेरे बच्चों? अच्छा, जो मैं मार्किंग करता हूं उसमें से 10-12 मार्क काट लिया करो अपने। अगर आपके 40 आए हैं तो सीआई में 28 से ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको उसी हिसाब से ग्रेड देना है जो आपका रॉ मार्क्स है। सो आई कैन नॉट गिव यू सच लो मार्क्स कि आप लोग फेल होते जाएं सारे बच्चे। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर 25 दूं, 35 दूं जैसे सीआई देता है, तो किसी का ये ना आए। राइट? ओके जी, लेट्स मूव ऑन नाउ। Assess the extent to which a fall in the value of US dollar against the euro is likely to affect US imports of olive oil from the EU. आसान क्वेश्चन है, कोई की टर्म नहीं है। मुझे बताएं, जो डॉलर यूरो के अगेंस्ट फॉल हुआ है उससे यूएस के लिए ऑलिव ऑयल जो वो इंपोर्ट करता है उस पर क्या असर आएगा? शाबाश, बोलना शुरू करते हैं। अप टू 3 4। हाँ जी, एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिससे यूएस, हाँ, यूएस में जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइवेट किचन्स, सॉरी कमर्शियल किचन्स, रेस्टोरेंट्स, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और उससे एग्रीगेट सप्लाई कम होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है। और क्या मसला होगा जी? लोअर एक्सचेंज रेट की वजह से ऑलिव ऑयल एक नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड इज रादर इनइलास्टिक, तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर होगा और उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा सकता है। समझ आ गई बात? अब जी, क्यों ऐसा नहीं होगा? साइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से डिमांड इनइलास्टिक होती है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था, इलास्टिक डिमांड होती तब उनको नुकसान होता है। इनइलास्टिक डिमांड होती है तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जा सकता है। और इसके अलावा जी, ऑलिव ऑयल के मुकाबले में कुछ और भी बताया था उन्होंने, डेटा में कुछ और भी अवेलेबल है, वो उस पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, राइट, जिससे उनका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर शायद ना बढ़े। अब जी इवैल्यूएट करें किस हद तक। जी, जी मेरा बेटा। इनइलास्टिक डिमांड हो, प्राइस गिरे, प्राइस बढ़े तो एक्सपेंडिचर बढ़ता हो। सॉरी, आई वाज राइट फर्स्ट टाइम। इनइलास्टिक डिमांड फर्दर डेफिसिट में जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में जब इलास्टिक हो जाएगी तो फिर सरप्लस में आएगा। यस, यू वर राइट, सॉरी, आई डिडंट इवन थिंक। राइट जी। एक सेकंड जी, एक सेकंड जी। ये है ऑलिव ऑयल का डिमांड कर्व शॉर्ट रन में, इन इलास्टिक। यूएस डॉलर नीचे होने से ऑलिव ऑयल की प्राइस बढ़ी है, तो एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिचर, पहले सिर्फ ए बी था, अब ए सी सी एडेड टू एक्सपेंडिचर इज मच मोर देन बी लॉस्ट। सो हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर राइज होगा। ठीक है, हमारा डेफिसिट बढ़ेगा। अलबत्ता लॉन्ग रन में ये डेफिसिट कम होगा क्योंकि डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। It will also depend on how much they can shift to sunflower and stuff like that. अब evaluate करें जी, extent to which a fall in value of US dollar against euro is likely to affect US imports of olive oil. जी मेरे बच्चों, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल पे डिपेंड करेगा, पीडी पे डिपेंड करेगा, और किस चीज पे डिपेंड करेगा?
क्रॉस इलास्टिसिटी वही है ना, सब्स्टिट्यूट्स, यस बिल्कुल करेंगे। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, अब हम जरा जाते हैं मार्क्स स्कीम पे और ये सारे क्वेश्चन। पहला 43.8, लेकिन परसेंटेज साइन लगाना है और लिखना है इंक्रीज। ठीक है, वर्ल्ड प्राइसेस, उसने कहा था कितनी चेंज हुई है, 43.8% इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो तब दूसरा मार्क मिलेगा। अब जी, एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिस्ट, सॉरी बेटे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100, P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू 100। ठीक है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, जो आंसर आए डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, लेट मी जस्ट चेक। मुझे एक आवाज सी आई थी कि शायद कोई बच्चा एंटर होना चाह रहा है, नहीं, आई वाज रॉन्ग, कुछ बच्चों ने लीव किया। Some restaurants and commercial kitchens are using sunflower as an alternative to olive oil. Explain how economists would measure the impact of rising olive oil prices on the demand for sunflower. For recognition that they would use cross elasticity of demand, one mark, और उसकी definition, because this measures the response in demand for sunflower oil, a substitute following a percentage change in price of olive oil. हमने तो ये भी बताया था कि olive oil महंगा हुआ है, sunflower की demand right पे shift हो जाएगी, बढ़ जाएगी। So 2 marks easy. अब जी, डायग्राम करेक्टली लेबल्ड, डायग्राम शोइंग इनिशियल इक्विलिब्रियम, 1 मार्क। नहीं भी आ रहा ना, बेसिक डायग्राम तो बना दो। फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई प्राइस जो है, न्यू इक्विलिब्रियम, लोअर प्राइस इंक्रीज आउट, व्हाट इज दिस शेइंग, हाँ, हायर प्राइस एंड लोअर आउटपुट, उल्टा लिखिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस विद क्लियर रेफरेंस टू डायग्राम प्रोवाइडेड, करेक्टेड शिफ्ट, 1 mark, ठीक है। The extent, explanation of changes with clear reference to diagram provided, correct shift, अच्छा। The extent of change in consumer surplus will depend on PET. Simple, 1 mark, basic equilibrium. Supply curve left पे shift, new equilibrium at a higher price, lower output, इसने उल्टा लिख दिया, दूसरा मार्क। फिर जी, क्लियर रेफरेंस टू डायग्राम प्रोवाइडेड, करेक्ट शिफ्ट आपने करके डायग्राम पे रेफर किया जी। पहले था मेरा एपीई, अब AP1E1 है और इतना कम हुआ है, कितना गिरेगा, पीईडी पे डिपेंड करेगा, इन इलास्टिक है तो ज्यादा गिरेगा। Assess the likely impact of increasing stocks of olive oil on the price and quantity of olive oil traded in future. Simply, for an explanation that sales of stocks will increase supply and reduce equilibrium price. When olive oil harvests are low, this will reduce volatility in the market, stabilize income of producers. We handled all these points. हमने और भी ज़्यादा लिखा था. However, difficulties include the necessary cost of storing the olives, the need to keep a sizable stock to make a difference to olive prices, the opportunity cost of using renting land in this way. Evaluation this that clearly assesses that likely impact on both the price and quantity of olive, e.g., by considering the extent of any price change being dependent upon that which sufficient stocks can be held. ठीक है, कितना बजट है, कितना स्टॉक होना चाहिए, गवर्नमेंट को सही असेस करना आना चाहिए। Next G, assess the extent to which a fall in the value of US dollar against euro is likely to affect US imports of olive oil from the EU. Up to 2 marks for explanation analysis of likely effects on US imports of olive oil. Fall in the value of US dollar would increase the dollar price of EU olive oil. This would represent an increase in cost of production for US retailers, reduce their profitability from selling it directly to consumers or to US firms, restaurants वगैरह। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, हमने तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कर दी थी, इसमें बहुत कुछ ऐड किया था। अप टू 2 marks फॉर वाई अ फॉल इन वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर माइट हैव अ लिमिटेड इफेक्ट, द एबिलिटी टू सोर्स ऑलिव ऑयल फ्रॉम आउटसाइड द ईयू, हमने सनफ्लावर की बात की थी, सेम चीज है। चेंजेस इन एबिलिटी टू स्टोर, therefore the extent of impact will depend on what exchange rate the olive oil was purchased. इन्होंने जरा डिफरेंट किया है, but still our marks will be there. That clear evaluation that clearly considers both perspectives and concludes the likely extent of change on US imports of olive oil from the EU. Possible evaluation might refer to importance of price elasticity of demand for EU olive and or XCD with olive oil substitutes. हमने ये evaluation भी ठीक की थी। Let's say इस mark scheme पे हमारा 1 mark कट भी जाए, doesn't matter. जी मेरे बच्चों, any questions? Let's just do one more question.
एंड इट। जी मेरा बेटा, जी पूछे जल्दी से। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू बिल्ड ऑन अ पॉइंट। अगर आपके पॉइंट वेल बिल्ड नहीं है तो दो या तीन करें, और अगर आपका वेल बिल्ड है तो एक ही बहुत हो जाता है, लेकिन आई वुड से मिनिमम टू। ठीक है। With the help of a PPC diagram, explain the terms scarcity and choice and consider the extent to which every choice has an equal opportunity cost. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही आप पीपीसी डिफाइन भी कर दें एहतियातन, स्कार्सिटी भी डिफाइन कर दें, चॉइस भी डिफाइन कर दें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिफाइन कर दें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। Scarcity is unlimited wants, limited resources. PPC is a curve that shows all possible combinations of two goods an economy can produce using all its resources fully efficiently with a given state of technology. Opportunity cost is the next best alternative for gone. अब मेरे बच्चे, सबसे पहले तो हमने स्कार्सिटी दिखाने के लिए हम ये क्वेश्चन बहुत दफा कर चुके हैं। जी मुझे बताएं, मैं पीपीसी पे स्कार्सिटी कैसे दिखाऊंगा? एक और पॉइंट बनाऊं, एक और कर्व बनाऊं? हाँ, यस, ये हमारा अनअटेनेबल पॉइंट है। यानी वांट्स हैं, डिजायरेबल है ये, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम इसके ऊपर नहीं जा पा रहे। हम अपने पीपीसी के ऊपर या अंदर बना सकते हैं, इस पे नहीं जा सकते। ये स्कार्सिटी शो कर रहा है। स्कार्सिटी के रिजल्ट में हमें चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस इज चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। पहले हम 10 ये और 20 ये गुड्स बना रहे थे। अब हमने रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया। ये टर्म जरूर लिखिएगा। टू मेक 10 मोर ऑफ गुड बी वी हैड टू सैक्रिफाइस 5 मोर ऑफ गुड ए। नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है? आपका क्या क्या हर चॉइस की इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? नो, रिसोर्सेज आर नॉट होमोजीनियस। यस, पॉसिबल ही नहीं है। Yes, every time we reallocate more resources towards one good, we'll have to give up a bigger quantity of the other, because workers will need training, land would need adapting, capital will need adapting, opportunity cost बढ़ेगी। इसलिए रियल वर्ल्ड में आउटवर्ड बेंडिंग जैसे मैंने बनाया पीपीसी होता है। समझ आ गई मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन तो हलवा है जी। असेस, सॉरी, कुछ पूछना था? हो गई इवैल्यूएशन? पहले आपने, मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर देखो। जैसे ही आपने ये पीपीसी ड्रॉ किया, एक मार्क विद करेक्ट लेबल्स। फिर आपने एक पॉइंट बाहर लगाया, एक मार्क। फिर बी टू सी मूवमेंट दिख, अच्छा, बाहर वाले पॉइंट पे आपने बताना है कि हमारा पीपीसी पीपीएफ बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम इसके बाहर नहीं जा सकते। इट्स शोइंग स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ रही है, चूजिंग बिटवीन टू गुड्स ए एंड बी। We reallocated more resources towards B. To make 10 more B, we had to give up 5A. This is opportunity cost. यहीं पे आपके 6 मार्क्स आ चुके हैं। हमने स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब बता दिया। इवैल्यूएशन, opportunity cost will not remain constant because in real world resources are not homogeneous. Land, labor, capital are not equally suitable for making both goods. So when we'll keep making more of good B, for every extra good B we'll have to give up a bigger amount of good A. Opportunity cost will increase. समझ आ गया? ये आपकी वैल्यूएशन थी। क्लियर मेरा बेटा? अब लास्ट चीज जी, assess whether the allocation of resources in a market economy is always beneficial. Less time, so I'll do it myself. You know the answer. A market economy, तीन क्वेश्चन पूछे: who owns, who operates, who controls, who owns, sorry, who owns, what's the motive, what's the mechanism. A market economy is owned, controlled and operated by private sector, private firms and individuals, and they have profit maximization as their main motive. They use price mechanism, demand and supply to allocate resources. अब मेरे बच्चों, मार्केट इकोनॉमी क्यों बेनिफिशियल है? 4 मार्क्स। Market economy responds quickly to consumers' choice. As a result, there is large amount of competition. Hence, prices might be a little lower.
They might offer better quality. Consumer will have wide choice, greater consumer sovereignty. They will also use latest technology and equipment to reduce their cost in order to enhance their profit. Again, the quality and cost quality will improve and cost will decrease. They respond very quickly to consumer choice. They do not waste resources and are very efficient in allocating resources, especially in private goods. अब हम चलते हैं जी, क्यों बेनिफिशियल नहीं है? तीन, मार्केट फेलियर। डीमेरिट गुड्स, इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से डिमांड कम है, अंडर प्रोड्यूस हो रही है। सिगरेट्स, अल्कोहल एग्जांपल दे दें। मेरिट गुड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से डिमांड कम है तो अंडर प्रोड्यूस हो रही हैं। डीमेरिट गुड्स ओवर प्रोड्यूस हो रही हैं। पब्लिक गुड्स सिरे से नहीं बन रही, नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, एक्सप्लेन करें। Nobody can be stopped from consumption, non-rival. Consumption by one person does not reduce the availability for others. Hence, there is a free rider problem and free market cannot charge a price. They will not be provided at all. They are a missing market. फिर मोनोपलीज बन जाएंगी जो एक्सप्लॉइट करेंगी। एंड पे जी, क्या हमेशा मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए? When it comes to private goods and innovation and choice, yes, private sector market economy is very beneficial for consumers and resource allocation. But whenever there are market failures, some level of government intervention is required, especially for merit, demerit, and public goods. Therefore, government intervention is required, and a mixed economy is the best solution. समझ आ गया मेरे बच्चों? 20 में से अच्छे बच्चे 16-17 आराम से ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? Let's have a quick look at the mark scheme just to be on the sure side. सबसे पहले an accurate PPC, a concave or straight line curve that meets both axes with appropriate and correctly labeled axes. I would say concave बनाएं, straight line ना बनाएं। उसने मार्क दे दिया एक। Accurate definition of opportunity cost, एक मार्क। How the scarcity in factor endowment scarce results in scarce results, अच्छा, in factor endowment scarce results and infinite wants results in choosing, having choices having to be made. हमने सारी बातें की, 3 मार्क्स नॉलेज के आ गए। Uses the diagram to explain that scarcity is shown as a point on the straight line PPC. The opportunity cost of changing production combination shown as a movement along PPC. The opportunity cost is equal due to negative one gradient of PPC, except constant trade-off, though not strictly true. Nahin, I will go for not constant trade-off. Use the diagram to explain that scarcity is shown as a point on straight line PPC. Opportunity cost of changing production combination is shown as a movement along PPC. The opportunity cost is not due to increased trade-off. The greater the proportion of resources allocated to production of a good. ये चबले मार जाते हैं, लेकिन ठीक है, बात वही है। 1 mark for a valid explanation that the extent to which each choice has an equal opportunity cost depends on the shape of PPC or whether or not there are unused factors of production when the choice is being made. अच्छा, यहाँ पे एक बात मैंने भी गलत कर दी। अगर हम इनसाइड पीपीसी थे तो कोई जरूरी नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आए। वी कैन मेक मोर ऑफ दिस गुड विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी ऑफ दिस गुड। ठीक है, तो ये बात उसने सही की है। अलबत्ता इसलिए मार्क्स कम आते हैं। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को उसने बिल्कुल डिफरेंट मार्क्स स्कीम बनाई है। नॉलेज के 3 पूरे थे, एनालिसिस के 3 पूरे थे या 2 पूरे थे, इवैल्यूएशन का 1 कट जाता है। समझ आ गई मेरे बच्चे? सॉरी, अनयूटिलाइज्ड वाली बात हमने पहले तो कभी नहीं की, लेकिन हम आज कर देते हैं। बेटे, अगर हम पीपीसी के अंदर हैं, लेट्स से 10 ये बन रही थी और 20 ये, और अब हम पीपीसी पे गए, ये 30 बन जाएंगी, वो 10 की 10 बनती रहेंगी, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, गॉट इट या नहीं? Okay, I'm closing the class. Unfortunately, time is over. We'll look at this question again tomorrow.